अजय कैप्टन सर आएंगे तो उनको ऊपर लेके आएंगे। बुला रहे हैं हम लोग आ जाए, ठीक है? Accommodation is registered, it comes to Dear esteemed guest, distinguished speaker, and all participants, it is my honor and privilege to welcome you all to this national seminar on current business opportunity and challenge in Zero, Arunachal Pradesh, India. On behalf of Indira Gandhi Technological and Medical Sciences University Zero, I extend a warm welcome to each one of you who has taken the time and effort to be a part of this event. Zero as a district is in many ways very unique. You know, I am reminded of my days in Austria when I look at Zero. The same kind of climate, the same kind of potential. It's just that the potential has not yet been translated into reality. In fact, it's not just about Zero. The wider northeastern region is just about coming into the wider national limelight. So far, integration itself was a question. I mean, the physical integration. Now that those obstacles seem to have been finally overcome, it is time for us to think about the next step, which is development. Physical infrastructure is the first question that has to be answered when talking about development. Obviously, when we look around, we see tremendous progress on the front of physical infrastructure. From what I gather and from what people have told me, that things as they seem today are drastically different from things as they were around a few years ago. So I am new to the place, so I don't know how things were at that point of time, but assuming whatever is being told to me is true, and I don't have any reason not to believe what is being told to me. So we can rest assured that we have made a lot of progress on physical infrastructure. So first of all, I should thank the faculty members of ITAMSU for having me here and giving me an opportunity to interact with you all, especially the young friends, those who are going to be the builder of the nation in days to come. Since being from the tourism background, so I would like to highlight some of the key points in aspect of tourism in regard with the Zero. So since the subject is of current business opportunities and challenges in Zero Arunachal Pradesh. So when we speak of the current business and opportunities, tourism plays a very pivotal role here in Zero. In regard to the Zero tourism, in introductory I won't say much because Zero tourism has been doing exceptionally well
what we call in Hindi zero tourism जो है स्वचालित ढंग से चलता है, but it runs by all because the people over here, the stakeholder over here, they have understood their responsibility and they have been doing well. Whether you say the hotel operators, whether you say the homestay operators, whether you say the tour operators or the tour guide, or any sort of person, you would find a Apadani man very responsible towards the tourism. And it is one of the major reasons why does the department doesn't interfere much in the realms of zero tourism. So first of all, I would like to speak upon the rural tourism. So you can just figure out what the rural tourism means. Rural tourism means the tourism which is exclusively devised for the growth of the rural tourism, and it enables sustainable development of employment opportunity at the grassroots level. And in rural tourism comes the cultural tourism, and which is one of the key aspects of the rural tourism. The cultural the cultural ethos and the kind of the people they have been practicing their age-old traditional practices. This all plays a very pivotal role. वस्त्र, रोटी, मकान, कपड़ा का अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लोग बहुत इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में जितना जो जैसे दिल्ली में जितना जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंस देता है, हम लोग इतना अप्लाई यहाँ में वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। जितना इन्वेस्ट होना है वो नहीं हो पाता है, जितना सक्सेस होना है वो नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्कीम दे के देखता है। लेकिन जैसे अभी दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे ये क्या बोलते हैं ये कॉटन उद्योग, खादी उद्योग, ये जितने जो गुजरात जैसे राजस्थान ये सब में सक्सेस हो रहा है, इस तरफ में नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ में जितना जो हो सकता है फिर भी वो लोग ट्राई करके देखता है। जैसे हस्तकला मीन्स हाथ से बना हुआ कपड़ा, और ऐसे कुछ ये क्या बोलते हैं ये स्कीम जैसे स्मार्ट स्फूर्ति स्कीम, इंटीग्रेट स्किल डेवलपमेंट स्कीम, स्वावलंबन स्कीम और प्रोडक्शन स्कीम, स्मॉल इंडस्ट्री स्कीम, ये सब बहुत देके देखता है। लेकिन हमारा नॉर्थ ईस्ट में मेरे ख्याल से जितना जो दिल्ली में होता है, जितना सेंट्रल ट्रप में होता है, इतना नहीं हो पाता है, देके देखता है। यहाँ में भी सबसे हम यहाँ का जीरो का ही बात करेंगे। यहाँ पे जीरो में फर्स्ट स्लिप कला बोल के बहुत स्कीम दे के देखता है, लेकिन उसमें वो यहाँ में वो इंस्टॉल करने के लिए रॉ मटेरियल जितना चाहिए होता है, उसमें यहाँ अफोर्ड नहीं हो पाता है। उसके पास तो रॉ मटेरियल और सेकेंड तो उसमें टेक्निकल जो जानने वाला है, फिर मशीन इंस्टॉल करने वाला, वो सब जितना यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाता है। लास्ट ईयर भी हम लोग को स्कीम दे के देखा था। Good morning to everyone. Okay, so now comes the moment to unveil the department gallery. The gallery consists of department program photos. It consists of achievements, goals and also future prospects. I would like to request our chief guest, Sri Dr. Karno, to unveil the department gallery. देखिए, आज का जो हमारा प्रोग्राम जो था, इसको हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ ने ऑर्गेनाइज किया था। और एज ए यूनिवर्सिटी हम हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि सोसाइटी, यहाँ की सोसाइटी, पूरे वाइडर नॉर्थ ईस्ट की सोसाइटी, उसमें हम वैल्यू एडिशन कर सकें। हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन यहाँ लोकेटेड है, तो हमारे प्रेजेंस से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन जनरल और अरुणाचल एंड ज़ीरो इन पर्टिकुलर, इसको जितना ज़्यादा बेनिफिट्स हम दे सकें, ये हमारी कोशिश रहती है। इसी सिलसिले में आज का ये इवेंट हुआ था,
जिसके थ्रू हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे कि ज़ीरो के जो स्ट्रेंथ्स हैं एज अ लोकेशन, इतना खूबसूरत ये एरिया है, इतनी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इन सब को यूज़ करके यहाँ पे किस तरीके का डेवलपमेंटल मॉडल्स यहाँ पे शुरू किया जा सकता है। इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, इन सब को हमने इनवाइट किया था और हमारा ये थीम था कि ज़ीरो में कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट किया जा सकता है। इसके ऊपर ये इनिशिएटिव था, फर्स्ट इन इट्स लाइन। ऐसी और भी इनिशिएटिव्स हम करते रहेंगे, ये था। तो देखिए, जैसा कि आप हमारे नाम से ही देख रहे होंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी के नाम में ही जुड़ा हुआ है मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी। तो अपने यूनिवर्सिटी के चार्टर के अकॉर्डिंगली हमने अपनी यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल्स रखा हुआ है और जो हम जिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स को हम प्रमोट करते हैं, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, बेसिकली होलिस्टिक हीलिंग थीम के तहत हम उसके लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ रखते हैं, जिसमें जो आपने देखा ओपीडी, उसमें जो क्रोनिक डिजीजेज जो हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बाउल मूवमेंट्स की प्रॉब्लम है, किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए जिसका जो एलोपैथिक सिस्टम में उसका कोई डिफाइंड ट्रीटमेंट नहीं है, वो बेसिकली पेन मैनेजमेंट एटीट्यूड में, फिलॉसफी में, एलोपैथी में वो काम चलता है कि आपके प्रॉब्लम को कम किया जाए। हम उसको होलिस्टिक मेडिसिन के तहत, होलिस्टिक हेल्थ केयर के तहत हम उसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये क्रॉनिक जितने भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उसका इलाज चलता है। हमारे पास लोग आते रहते हैं, सोसाइटी के हर तबके के लोग आते हैं। हमारे पास ऐसे भी लोग आए जिनको सीवियर पैरालिटिक अटैक हुआ था और उनको हमने यहाँ ट्रीटमेंट दिया, जिसके बाद से वो उठ के खड़े हो गए, वो चल रहे हैं। ऑब्वियसली पैरालिसिस के उतने सीरियस अटैक के बाद कोई भी आदमी अपने प्री पैरालिटिक लेवल पे तो नहीं जा सकता है, लेकिन हमने उनको बेड रिडन होने से बचा लिया। वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को खुद पूरी करते हैं, वो चलते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने चार्टर के हिसाब से होलिस्टिक हेल्थ केयर को यहाँ बढ़ावा दे सकें। हम यहाँ के गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं कि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं उसको यहाँ की सोसाइटी और कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स, इन सब के साथ काम कर रहे हैं। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है कि हम अपने फैसिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। वो है हमारा मकसद। आपका यहाँ पे एडमिशन का बारे में कैसे प्रोसीजर होता है, कौन कौन सा कोर्स प्रोग्राम होते हैं? हाँ जी, तो हमारे एडमिशन्स के अनाउंसमेंट कर चुके हैं हम लोग। 20 तारीख से एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चालू हो जाएगा। हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट से लेके PhD लेवल तक। नर्सिंग है, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में हमारे पास कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों। बिजनेस मैनेजमेंट में कोर्सेज है, इंजीनियरिंग में कोर्सेज हैं हमारे पास। बहुत जल्दी हम यहाँ पे फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स शुरू करने वाले हैं और हमारे पास फिजियोथेरेपी में कोर्सेज हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास। फुल डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है उसको। और जिसको भी एडमिशन चाहिए वो हमारे एडमिशन सेल से कांटेक्ट कर सकता है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम एडमिशन दे रहे हैं लोगों को। हमारा पूरा मानना है कि जो हमारे कोर्सेज हैं उन सबको हमने इतने अच्छे से डिज़ाइन किया है कि जो भी स्टूडेंट उन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं उनको बेसिकली हम जॉब ओरिएंटेड बनाते हैं। जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में उसके हिसाब से हम उनको स्किलिंग का ये रखते हैं, अप्रोच रखते हैं, स्किल डेवलपमेंट उनका हो, वो लाइफ में कभी भी किसी पे डिपेंडेंट ना हो जाए जॉब्स के लिए। वो जॉब प्रोवाइडर हों, जॉब सीकर ना बने।
जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हैं जो जॉब सीकर भी बनते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। तो जिसको मिल गई वो क्यों छोड़ेगा, और जिसको नहीं मिले वो डिस्पॉन्डेंट ना हो जाए। लाइफ में वो अपने पैरों पे खड़ा रहे, नए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सके, ना सिर्फ खुद एम्प्लॉयड हो बल्कि दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सके, सोसाइटी में वैल्यू एडिशन कर सके। क्योंकि हमारी फिलॉसफी है कि सिर्फ एक आदमी एम्प्लॉय होता है तो उससे उसका भला होता है। कोई आदमी अगर एम्प्लॉय होता है और 20-25 और लोगों को एम्प्लॉयड करता है तो वो सोसाइटी का भला करता है। इस अप्रोच में हम चल रहे हैं और हमारी सारी कोर्सेज उसी पर्सपेक्टिव से डिज़ाइंड है। कोई भी आदमी जिसको एडमिशन चाहिए वो हमारे वेबसाइट पे जाके डिटेल्स ले सकता है, नहीं है तो हमारी यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन सेल का नंबर है उस पर कॉल कर सकता है, मेल कर सकता है, फिजिकली भी आके बात कर सकता है। हम अक्रॉस द बोर्ड जितने भी चैनल्स हैं सब पे हम प्रेजेंट हैं, कोई भी एडमिशन ले सकता है हमारे यहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।